revise whatever we have seen till now. Okay. So if you remember in the last session, we saw this important, we have answered this important question. What is the right way to measure time and speed complexity? Okay, na? The right way. I hope you're all able to remember that thing. Then the second thing that we saw was about the different notations. We mainly deal with three notations. The first is big O, the second is omega, and the third one which we saw was theta, right? Then we saw something about the importance of time complexity in DSA, right? We also solved a question on Leet code, and therein we found out why and why the why the importance of time complexity is so much there in DSA. Today also from the question that we are going to solve, this thing will totally get fitted into your head कि क्यों इतना importance देते हैं basically. Then we saw about how to calculate the time complexity. ठीक है ना, हमने equations बनाना सीखे, हमने कोड को line by line how to dry run it and find the time complexity वो हमने देखा. फिर उसके बाद हमने एक छोटी सी टेस्ट की थी and then we concluded the last session, right? So अभी हम जो देखने वाले that is nothing but we are going to see a warm up question. ठीक है, so we'll provide the link of that question in the chat box and I will give 5 minutes to read that question. Okay, let's take 10 minutes. You have 10 minutes basically to read the question. The question is very easy. If you are able to build a solution, it's well and good. So you have 10 minutes, go through the question and try to find out a solution for it from your own.
To the people who have just joined, I have posted one question in the chat. I'll just post it once again. Please try to first of all read the question properly and try to build the solution, or at least the algorithm. What can be the approach to solve that problem? Who pasted the link in the chat? Okay, so are you done with? I'll send one solution. Okay. Okay, guys, back to the screen. Are you guys there here? Okay. So let's get back to the question, right? See, if I read the question again, what the question is trying to say me, given an array nums containing n distinct number in the range from 0 to n, returns only the number in the range that is missing from an array. ठीक है, तो हमें एक nums का array दिया है basically. We are given with an array that contains n distinct numbers. मतलब इसके अंदर जितने भी n numbers रहेंगे, whatever will be the size of n, जो numbers रहेंगे हमारे इस array के अंदर वो distinct रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे, right? And the range is starting from 0. मतलब अगर मेरे को n की वैल्यू यहाँ पर 5 दी है, तो इस array के अंदर कितने numbers रहेंगे? From 0, 1, 2, 3,
4, 5. They can be in the different order, but this will be the number that will be present inside the array, right? Now it is saying me that return only the number in the range that is missing from the array. Matlab there will be some number which will be missing in the array. Let's suppose 3 is not there in the array. We only have 0, 1, 2, 4, 5. Okay? And now what we want to do is we want to return that which element is missing in the array. That is what the question is saying us to do. Let's try to understand this with an example they have provided to us. So the first example they have showcased is that the first they have given the input as the nums array, that is 3, 0, 1. What is the value of n over here now? N will be equals to 3. This is 1, 2, 3. Okay, so n value will be 3. Now what we want to do, we want to find out the missing elements in this. Okay, तो स्टार्ट करेंगे 0 से. द रेंज इज बेसिकली फ्रॉम 0 to n, मतलब 0 से लेके n तक रेंज रहेगी हमारी. n की वैल्यू दी हुई है 3. तो 0 है प्रेजेंट, 1 है प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट नहीं है और 3 भी प्रेजेंट है. तो आउटपुट क्या रहना चाहिए मेरा यहाँ पर? द मिसिंग एलिमेंट शुड बी 3, सॉरी 2, राइट? सो दे हैव गिवन द आउटपुट एज 2. ये वाला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड वाला. यहाँ पर उन्होंने एरे क्या दिया है? नम्स का एरे क्या दिया है? 0, 1. मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 and 2. तो n की वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पे 2. सो द रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 2. तो चेक करेंगे कि 0 to 2 में से कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, वो चेक करेंगे. तो 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, मतलब मिसिंग कौन सा है? 2 मिसिंग है. सो द आउटपुट शुड बी 2. दिस इज व्हाट वी वांट टू रिटर्न. एग्जांपल 3 देखते हैं. दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल आई गेस. एग्जांपल 3 देखेंगे तो अरे here also they have given a nums array which has in total how many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So n value will be 9. So the numbers will be from the range 0 to 9. Okay? तो चेक करते हैं कौन सा नंबर मिसिंग है. 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है. सो द number that is missing is basically 8. ठीक है? So this is what we want to do in this particular question. तो अगर if I was there, if I see this question first time, so पहला अप्रोच मेरे दिमाग में आएगा that will be the brute force approach. मतलब जैसे हमने अभी किया ना, the thing which we have just solved by just cross checking each and every individual solution that has been present. The same thing I will try to put in the code also. मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे को नंबर एक मेरे को एरे दिया है यहाँ पर, वी हैव गिवन एन एरे बेसिकली, ठीक है, दैट इज अ वेक्टर, बट लेट्स सपोज अभी के लिए इसको एरे मान लो. ठीक, वी आर गिवन विद एन एरे नम्स. ठीक है, तो एरे के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे प्रेजेंट. हमको फाइंड आउट करना है मिसिंग एलिमेंट. सबसे पहले मैं इंटीजर बना दूंगा जो कि ये जो मिसिंग एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा. ठीक है, तो आई कैन मेक एन इंटीजर मिसिंग नाउ, जिसके अंदर बेसिकली हम स्टार्टिंग में कुछ भी डाल सकते हैं. अभी के लिए -1 डाल देता हूँ. यू कैन पुट एनीथिंग, और इफ यू डोंट पुट एनीथिंग दैट विल आल्सो बी फाइन. तो मैंने -1 डाल दिया. ये क्या करेगा? जो मिसिंग नंबर है उसको हम इसके अंदर डालेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे लगने वाली है दैट आई विल रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एन मतलब द साइज ऑफ द एरे, दैट ऑल्सो विल बी रिक्वायरिंग. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है. अगर एरे का मेरे को साइज कैलकुलेट करना हुआ रहता तो आई कैन यूज साइज फंक्शन. ठीक है, जो भी आपके एरे का नाम है, यहाँ पर मेरे एरे का नाम क्या है? बेसिकली नम्स है. तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, नम्स डॉट साइज. ये बेसिकली मेरे को एरे की साइज रिटर्न कर देगा. तो यहाँ पर कितनी है? 3 है. दिस विल गिव मी 3. तो इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर. सो आई विल स्टोर दिस इन सम वेरिएबल एंड लेट अस नेम इट एज एन ओनली. ठीक है, एन के अंदर मैंने साइज ऑफ एरे स्टोर कर दिया. अब क्यों किया है भाई? द सिंपल लॉजिक दैट आई एम गोइंग टू यूज इन दिस प्रोग्राम, I already told that will be the brute force logic. इसके अंदर मैं क्या करूँगा? Let's say ये मेरा कोई भी array यहाँ पर given है. I'm taking any random array. Let's take it as 3, 0, 2, 1, 5. अभी यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी? Can anyone tell me in this array? 5. It will be 5, right? तो मैं क्या करूँगा? एक for loop चला दूंगा
जो कि चलेगा 0 से, क्योंकि अपनी रेंज कहाँ से शुरू होती है, अगर मेरे पास साइज गिवन है 5, तो आई नो द रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो मैं 0 से मेरा एलिमेंट स्टार्ट करूंगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। और कहाँ तक जाते हैं बेसिकली, 5 तक जाते हैं, राइट, 5 तक जाते हैं इंक्लूडिंग 5, ठीक है। तो एरे एरे ऑफ आई, सॉरी, लूप ऑफ आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5, और आई कैन से इट एज ए। इसको मैं, यस एनीबॉडी हैव एनी डाउट, आई प्लस प्लस कर दूंगा। किसको कुछ डाउट है? This n is nothing but it is representing the number of elements that I have inside my array, ठीक है, उसको मैंने n लिख दिया। This is nothing but 5, n को मैं अभी के लिए यहाँ पे I have already written it, it is 5। तो अगर मैं इसके अंदर, इस लूप के अंदर सी आउट लिखता हूँ I, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, what I will be getting printed on my screen, can I tell? ये लूप मेरे को क्या आउटपुट देगा? अरे क्लास शुरू है ना। 0 to 5. 0 to 5 देगा, ठीक है। तो आई विल गेट सम आउटपुट एज 0 1 2 3 4 5। डू ऑल गाइस एग्री विथ मी? अभी तक इतना क्लियर है? एक फॉर लूप लगाया जो कि हमको 0 से लेके n तक सारे नंबर्स प्रिंट करके दे रहा है, तो इट विल गिव मी 0 1 2 3 4 5 प्रिंटेड। बट मुझे प्रिंट नहीं करना है बेसिकली, मुझे इन सभी नंबर्स को मैं क्या करूंगा, वन बाय वन चेक करूंगा, क्या ये सभी नंबर्स मेरे एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं प्रेजेंट रहता तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, मैं उसको स्टोर कर दूंगा मेरे मिसिंग नंबर के अंदर, वेरिएबल के अंदर उसको रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे को इस एरे ने तो बेसिकली क्या दिया, एक चीज दी है, वो मतलब मेरे को 0 से लेके 5 तक सारे नंबर दे दिए, जो कि मैं वन बाय वन चेक कर सकता हूँ। किसके साथ, किसके साथ चेक करेंगे आप, बेसिकली हमारे एरे के साथ। इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको मैं वन बाय वन चेक करूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी आई के अंदर स्टार्टिंग में 0 रहेगा, ठीक है, आई के अंदर स्टार्टिंग में 0 रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक और फॉर लूप लगाऊंगा। ये अंदर वाला फॉर लूप किस लिए लगा रहा हूँ मैं, इस एरे के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए, टू ट्रैवर्स इनसाइड दिस एरे आई एम यूजिंग दिस इन अ फॉर लूप। तो ये भी चालू होगा कहाँ से, इन j शुड बी इक्वल्स टू 0, j should be, now the important thing comes over here is that should it be less than n or should it be less than or equals to n? थोड़ा सोचो इसके बारे में, should it be less than n or should it be less than or equals to n? मुझे इस एरे के अंदर ट्रैवर्स करना है, राइट। अब मुझे पता है कि एरे की इंडेक्स शुरू होती है 0 से एंड इट गोज टिल n-1, ठीक है ना। अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो लास्ट इंडेक्स विल बी 4, राइट। तो मुझे कहाँ तक जाना होगा, n तक जाना होगा, लेस देन n तक जाना होगा, राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो आई विल राइट इट ओवर हियर, आई विल राइट इट एज लेस देन, ठीक है जी, इतना सेफली हम चल गए। अभी हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट किस लिए लगा रहे हैं, बेसिकली मैंने क्या कहा आपको, आप क्या करोगे, वन बाय वन ये जितने भी नंबर्स है, सबसे पहले 0 है, तो मैं चेक करूंगा क्या मेरे एरे के अंदर 0 प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं, इफ लगा दिया मैंने, क्या है मेरा एरे का नाम, क्या है बेसिकली नम्स है एरे का नाम, ठीक है। तो नम्स ऑफ जे, क्या ये इक्वल्स टू है किसके, आई के, ठीक है। नम्स ऑफ जे, नम्स क्या है, मेरा एरे है, एरे के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इन सबको मैं किससे चेक कर रहा हूँ, इन सारे को वन बाय वन में चेक कर रहा हूँ, क्या वो 0 के इक्वल है, क्या इस एरे के अंदर 0 प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट आई एम चेकिंग। अगर मेरे को मिलता है कि हाँ भाई आपके एरे के अंदर 0 प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, एक बूलियन कोई भी एक फ्लैग बना दूंगा, एक बूल फ्लैग बना देते हैं जिसका नाम देंगे फ्लैग के अलावा इसको हम फाउंड कह देंगे। एक कोई भी मैंने क्या किया है, बूलियन टाइप का डेटा टाइप बनाया जिसका नाम दिया मैंने फ्लैग, ठीक। इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया फॉल्स, फॉल्स मतलब कि अभी तक मेरे को जो नंबर था वो फाउंड नहीं हुआ है, इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया। बट यहाँ पर क्या होता है, मेरे को पहला एलिमेंट मिल जाता है, दैट इज 0 इसके अंदर मिल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, बूल को क्या करूंगा, सॉरी, बूल का नाम क्या है हमारा, बूलियन का नाम क्या है फाउंड, तो फाउंड का कर दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। अब इस कोड को एक बार
ये करो, ड्राई रन करो। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। 0 के लिए ये लूप कितनी बार चलेगा, टोटल 5 बार चलेगा, राइट। तो 0 सबसे पहले 3 से चेक होगा, फिर 0 से चेक होगा। यहाँ पर मुझे क्या मिला कि हाँ भाई 0 मेरे एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू कर दिया मैंने, राइट। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, आई विल इंक्रीमेंट, आई विल बिकम 1। फिर से ये अंदर वाला जो लूप है ये 5 बार चलेगा। तब क्या होगा, दैट 1 विल बी चेक विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड माई एरे। 1 को हम पहले 3 से चेक करेंगे, नहीं मिला। 0 से चेक करेंगे, नहीं मिला। 2 से चेक करेंगे, नहीं मिला। 1 से चेक करेंगे, मिल गया, तो मैंने फाउंड ट्रू कर दिया। फिर 2 से चेक किया, फिर क्या 2 से फिर से चेक किया कि जो 2 है वो क्या मेरे फर्स्ट पोजीशन पर है, नहीं है। सेकंड नहीं, थर्ड हाँ जी है, तो फिर से ट्रू कर दिया। फिर 3 को चेक किया, 3 को फिर से ये अंदर वाला जो लूप है वो 5 बार रन होगा। चेक किया कि स्टार्टिंग में ही 3 मिल गया, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। फिर क्या चेक किया, 4 को चेक किया। अब 4 को मैं 1 बाय 1 चेक करूंगा, क्या 4 यहाँ पर है, नहीं है। 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 तो मेरे को क्या मिल गया, 4 इस पूरे लूप में कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है ना। इस पूरे लूप में मेरे को कहीं पे भी फोर नहीं मिला। तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू वंस आई गेट, इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको 4 वहां पर नहीं मिला ना, आपको बेसिकली 4 अगर वहां पर नहीं मिला, तो मैं इस फॉर लूप के बाहर एक कंडीशन लिखूंगा, इफ फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स हो जाता है मेरा, जो कि स्टार्टिंग में था। अगर मेरा फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स हो जाता है, दैट्स मीन्स कि जो नंबर था, वो पर्टिकुलर नंबर था, वो क्या हो गया, हमारा जो हमको फाइंड करना था वो नंबर, वो उसके इक्वल हो गया। तो आई कैन से दैट मिसिंग नंबर इज बेसिकली इक्वल्स टू, तो वट एवर जो नंबर रहेगा आई, वो 4 रहा था ना, हमने 1 बाय 1 चेक किया, तो वो आई वॉज इक्वल्स टू 4, तो मैंने मिसिंग नंबर के अंदर डाल दिया। एंड आई विल रिटर्न दैट सेम थिंग, रिटर्न मिसिंग नंबर, ठीक है। दिस इज व्हाट आर लॉजिक इज बेसिकली। इसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स लॉजिक, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 सारे एंटिटीज को चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको पहले सारे नंबर से चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो। अभी अगर नहीं समझा होगा, मतलब आपको अभी 50% भी समझ गया होगा, तो दैट इज मोर देन इनफ। जब मैं कोट करूंगा, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई विल बी रिक्वायरिंग इन दिस क्वेश्चन इज दैट आई विल रिक्वायर दिस साइज ऑफ द एरे, ठीक है ना। तो साइज फाइंड करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम एन रहेगा। दिस एन विल बेसिकली स्टोर द साइज ऑफ द एरे। साइज ऑफ द एरे स्टोर करने के लिए सबसे पहले लिखना है एरे का नाम, जो कि है नाम, और उसका साइज, दैट इज इट, विद द पैरेंथेसिस, बिकॉज इट इज अ फंक्शन। और मैं एक और इंटीजर बनाऊंगा जो कि वो मिसिंग एलिमेंट को स्टोर करेगा, ठीक है। मिसिंग नाम कह दो, मिसिंग एलिमेंट कह दो, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं फॉर लूप लगाऊंगा। Are you guys able to see the screen? Yes. 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 और एंड कहाँ से शुरू होगा मेरा, आई 0 से शुरू होगा। आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मेरे को एक बूल क्रिएट करना है बेसिकली। इसके अंदर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही बताऊंगा मैं इसको, आई विल टेल यू। बूल का नाम मैंने कर दिया फाउंड, और उसके अंदर इनिशियली मैंने वैल्यू डाल दी फॉल्स, ठीक है, कि नहीं मिला अभी तक कुछ भी। और एक और फॉर लूप लगाऊंगा मैं, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन एन j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या कर रहा था मैं, आई वॉज हैविंग इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर बेसिकली आई वॉज चेकिंग 1 बाय 1 कि क्या मेरा जो एरे है जिसका नाम नम्स है, उसके अंदर का जो एलिमेंट है j, क्या वो इक्वल्स टू है किसके, आई के। अगर हाँ जी है, अगर होता है तो क्या कर दो, फाउंड को क्या कर दो, ट्रू कर दो। और जैसे फाउंड हो जाए वो नंबर, इस लूप से ब्रेक कर देना। मतलब किस किस वाले लूप से ब्रेक करना, विच लूप यू नीड टू ब्रेक, ये अंदर वाला फॉर लूप, ठीक है ना। बेसिकली जब हम इफ के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को ब्रेक करने के लिए, कभी भी कंडीशन को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक नहीं लिखते, हम लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक लिखते हैं बेसिकली। तो इस फॉर लूप के अंदर से हम ब्रेक होंगे, फॉर लूप के अंदर से ब्रेक हुए मतलब कंट्रोल आ जाएगा बाहर वाले फॉर लूप पे,
ठीक है, इसको एक बार फिर से बताऊंगा मैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगर ये जो फाउंड रहता है ना, जो फाउंड हमने वेरिएबल बनाया बूलियन टाइप का, अगर वो फॉल्स ही रहता है, उसका मतलब क्या, उसको नंबर मिला ही नहीं उस एरे में। जो आई वाला नंबर था वो उसको उस एरे में मिला नहीं, इसीलिए जो फाउंड था, जो इनिशियली फॉल्स था, वो फॉल्स का फॉल्स ही रह गया, उसने कभी अपडेट ही नहीं किया। तो इन दैट केस, इफ दिस सिचुएशन अकर, व्हाट आई विल डू, हियर आई विल राइट इफ फाउंड हमारा वैसा का वैसा ही है इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो उस वाले केस में क्या करना, और उस वाले केस में क्या करना बेसिकली, मिसिंग नंबर के अंदर आई की वैल्यू को डाल देना, और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप, ठीक है, इस फॉर लूप के बाहर क्या करना, आप रिटर्न कर देना किसको, क्या रिटर्न करना है मुझे, बेसिकली आई वांट टू रिटर्न द मिसिंग नंबर, दैट इज इट। ठीक, इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है। जस्ट पे अटेंशन फॉर 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर है, एरे है, जिसके अंदर मैं लिखूंगा 1 2 0, ठीक है, 1 0 1 2 और 4। टोटल साइज है इसकी 4 बेसिकली, ठीक है। अभी मुझे पता है कि अगर 4 साइज है, तो द नंबर दैट शुड बी प्रेजेंट इन द एरे शुड बी 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इस नंबर्स को एक्सेस करने के लिए, ये सारे नंबर्स को एक्सेस करने के लिए मैंने बाहर का लूप लगाया बेसिकली, जो कि मेरा 4 तक चलेगा, 0 टू लेके 4 तक चलेगा। फिर मैंने एक बूलियन बनाया फाउंड करके, जिसके अंदर इनिशियली मैंने फॉल्स वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर दिस, I'm basically running one more for loop to access this element, to access the elements that are present in my array, ठीक है। और बेसिकली इस कंडीशन के अंदर मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ वन बाय वन, इसमें का पहला एलिमेंट ले रहा हूँ और उस एलिमेंट को इन सारे एलिमेंट से वन बाय वन चेक कर रहा हूँ, क्या वो एलिमेंट मेरे एरे के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली। अगर है, इफ दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट, लेट सपोज मेरे को सबसे पहले 0 मिल गया कि थर्ड पोजीशन पर है, मेरे को जैसे मिला, मैंने क्या कर दिया, फाउंड के अंदर ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब, मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर लूप, जो ये वाला फॉर लूप है ना, इससे बाहर आ जाऊंगा और इस वाले फॉर लूप पे आ जाऊंगा। तो इस वाले फॉर लूप पे आ गया, तो पहले 0 फाउंड हो गया, फिर 1 आएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर से जो हमारा फाउंड था वो फिर से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अभी तक मेरे को वो जो 1 था, अभी इंक्रीमेंट होके 1 होया ना आई में, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला, मतलब फाउंड क्या हुआ, नहीं हुआ, मेरे को नहीं मिला। फिर से अंदर वाला फॉर लूप चलेगा, मेरे को इसके अंदर क्या मिल जाएगा, 1 कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाएगा, मैं ब्रेक हो जाऊंगा, जैसे जैसे मेरे को 1 मिलता है, आई विल बी ब्रेकिंग आउट ऑफ द इनर फॉर लूप, ठीक है। आई विल बी बेसिकली ब्रेकिंग आउट ऑफ द इनर फॉर लूप, फिर कंट्रोल फिर से किसके पास जाएगा, आउटर फॉर लूप के पास जाएगा, राइट। द कंट्रोल विल गो टू द आउटर फॉर लूप, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से हम इनर वाले, फिर से ये जो फाउंड है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, कि मुझे 2 अभी तक नहीं मिला। अगर उसको 2 इस फॉर लूप के अंदर मिलता है, तो हम फाउंड कर देंगे ट्रू, ब्रेक कर देंगे। उसी तरह 3 के लिए करेंगे, ठीक है। अब उसको क्या मिलता है, 3 इस फॉर लूप के अंदर इनिशियली फाउंड क्या रखा हमने, फॉर 3 फॉल्स रखा, ठीक है। फिर इस अंदर वाले फॉर लूप के पास है, हमने देखा 1 बाय 1, हमने इस पूरे एरे के अंदर देखा 1 बाय 1, हमको 3 कहीं पे भी नहीं मिला, हमको 3 कहीं पे भी नहीं मिला, मतलब ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। मतलब क्या है, ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप चलेगा, इफ फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर हमारा जो फाउंड रहता है वो फॉल्स कब रहेगा, जब वो इस चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तब हमारा फाउंड क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगर फॉल्स रहता है तो दैट मीन्स दैट आई इज नॉट फाउंड आउट, एंड दैट आई, द सेम आई वी आर स्टोरिंग इनसाइड द मिसिंग नंबर, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो कोड था, ये हमको आई गेस अंदर लिखना था, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो इसके बाहर आएंगे हम, ठीक है। ये वाला जो कोड मैंने लिखा है यहाँ पर, वो बाय मिस्टेक मैंने बाहर लिख दिया, ये जो इतना वाला कोड है, इसको मुझे इसके अंदर लिखना होगा, किसके अंदर, ये इनर फॉर लूप के अंदर। एक बार लिख के बताता हूँ कि क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर।
ये जो फॉर लूप, ये जो इफ का कंडीशन लिखा मैंने, ये बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जस्ट अ सेकेंड, it should be inside the inner for loop. यहाँ पे अरे या here only, इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं, दैट इज इट। या तो ये यहाँ पर क्यों होना चाहिए बेसिकली? क्योंकि हम, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट नहीं होगा? जब जो आई वाला नंबर था, जो I3 था, वो इसके अंदर इसको मिलेगा नहीं। इसके अंदर मिलेगा नहीं मतलब फाउंड ट्रू कभी हुआ ही नहीं। फिर हम इसके बाहर आ जाएंगे विदाउट एग्जीक्यूटिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, विदाउट व्हाट एग्जीक्यूटिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, राइट? तो फिर उस वाले केस में क्या होगा, हम जैसे ये इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, हम इस वाले फॉर लूप के बाहर आएंगे और ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इफ फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स होता है, अगर उसको फाउंड के अंदर फॉल्स ही मिलता है तो हम जो आई की वैल्यू थी वो मिसिंग नंबर के अंदर डाल देंगे, एंड दैट इज इट, वी आर डन विद, एंड वी विल ब्रेक आउट ऑफ द इनर फॉर लूप ऑल्सो, सॉरी आउटर फॉर लूप ऑल्सो। आई विल बी ब्रेकिंग आउट ऑफ द आउटर फॉर लूप, क्योंकि मेरे को मिल गया जो मेरा मिसिंग एलिमेंट था वो मेरे को मिल गया, और मैं इस पूरे के पूरे फॉर लूप से भी बाहर आ जाऊंगा। तो ये जो इफ मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिकली, ये क्या करेगा, मेरे जो आउटर वाला फॉर लूप है उसको भी ब्रेक कर देगा। अभी समझा? इज देयर एनी डाउट? Yes. इज देयर एनी डाउट गाइस? किसको ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा? हेलो, सबको समझा? ठीक है, तो दैट इज व्हाट आवर कोड इज बेसिकली डूइंग। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू चेक इट इफ इट इज लाइक, इफ इट इज गिविंग अस एनी एरर और नॉट। तो कोड एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, कोड इज एक्सेप्टेड, तो द सोल्यूशन इज फाइन। ठीक है, इस फॉर लूप को, जो मैंने अंदर वाला फॉर लूप है ना, इस फॉर लूप को लिखने का एक अच्छा तरीका है, मतलब एक ऑप्टिमाइज तरीका है इस फॉर लूप को लिखने का। वी कैन यूज इन इंस्टेड ऑफ फॉर लूप वी कैन यूज द फॉरेन लूप। मतलब कैसे? कुछ इस तरीके से, जो पहले वाला लूप था ना वो सेम काम करेगा। फॉर मैं लिख सकता हूँ इंट जे और कोलन देना है। अब ये कोलन क्या इंडिकेट्स करता है बेसिकली, इंट जे इनसाइड योर वॉट एवर लूप यू वांट टू लर्न। ठीक है ना, तो मेरे को बेसिकली इस एरे के अंदर रन करना है। ठीक है, इस नम एरे के अंदर रन करना है। तो फॉर जे इनसाइड नम्स, तो ये क्या बेसिकली इंडिकेट करता है, what this j will indicate, what this entire loop will indicate, if you have an array nums जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ये j क्या करेगा बेसिकली, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वन बाय वन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या रहेगा, j की वैल्यू रहेगी 1, फिर j की वैल्यू रहेगी 2, फिर j की वैल्यू रहेगी 3, फिर j की वैल्यू रहेगी 4। दैट मीन्स फॉर इन j इनसाइड नम्स, तो ये j बेसिकली इंडिविजुअल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने पहले देखा था ना पहले वाले फॉर लूप में, सिमिलर टाइप का है। ठीक है, सो वी लर्न वन मोर फॉर लूप टुडे। बस आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर हम फॉर इन लूप यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमको ऐसा सिंटैक्स लिखने की बेसिकली ज़रूरत नहीं, इंडेक्स एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस जे के अंदर ऑटोमेटिकली वन बाय वन वो वैल्यू आ जाती है, उसको रिप्रेजेंट भी करने का काम नहीं, क्योंकि इसको कुछ ऐसी हमने ये नहीं दी है कि 2 से आगे बढ़ना है, फिर 3 से आगे बढ़ना है, फिर 1 से इंक्रीमेंट करना, वो, और ये भी नहीं कहा कि कब तक इंक्रीमेंट करना। तो वो बेसिकली एट अ सिंगल टाइम पूरे के पूरे जो आपके एरेज के एलिमेंट्स है उनको एक्सेस करता है वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो पोजिशन टिल एन। ठीक है ना, हमको बाकी के 2 कंडीशन हमने टोटली एलिमिनेट कर दी, क्योंकि हमको क्या करना था एट अ टाइम पूरा का पूरा एरे एलिमेंट क्या करना था, ट्रैवर्स करना था। तो हमने क्या कहा, ये वाला फॉर लूप यूज किया। स्लोली स्लोली विल आल्सो गेट फैमिलियर टू दिस काइंड ऑफ इजी थिंग। तो फॉर जे इन नम्स, जो लोग पाइथन वगैरह करते हैं उनको दे माइट नो अबाउट दिस थिंग।
So if I run the code again, I will get the similar output. There will be no difference in the output. It's getting me the same output. Okay. Even I can optimize this thing also. Instead of writing found equals to fall, I can just write it as not found. Okay. Not found मतलब that is what it is basically representing. अगर वो true रहता है false हो जाएगा, false होता है true रह जाएगा. These are the minute changes which will optimize our code basically. So if I run the code again, it will run completely fine. ठीक है. And let's try to submit the code कि हमको क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह मिलती है. लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. ओके, मेरे को एक चीज़ बताना यार. हेलो गाइस, मेरे को एक चीज़ बताना इस कोड को देख के कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी इन बिगो नोटेशन. n square बनेगी. एक बार सब बताना क्या बनेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. विल इट बी बिगो ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि दो फॉर लूप यूज कर रहे हैं राइट. तो ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट है ये कितनी बार रन होगी. दिस विल रन n स्क्वायर टाइम्स राइट. आर यू गेटिंग द थिंग. दो फॉर लूप है ना, डायरेक्टली तुक्का मार देना n स्क्वायर. अभी मतलब जितने टाइम आप फैमिलियर नहीं होते हो, बट दो फॉर लूप मिल गए मतलब समझ लेना कि n स्क्वायर है. तुक्का मारने का इन द सेंस कि अभी के लिए. At the later point of time, you will yourself be able to understand these things very, you know, in a very easy manner. ठीक है, तो अभी के लिए समझ लो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर. ठीक है जी. तो आपको अगर आप इसका एनालिसिस देखोगे यहाँ पर, तो आपको टोटल लगा है टाइम 327 मिली सेकेंड्स. एंड यू बीट हाउ मेनी परसेंट ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन. 5% ऑफ द पीपल. जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है दैट ओनली बीट्स 5% ऑफ द यूजर हु हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस. मतलब जो 95% यूजर्स हैं उन्होंने आपसे बेटर कोड लिखा है. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू इंडिकेट. सो दिस अप्रोच इज वेरी बैड. एक्चुअली दिस एल्गोरिथम दिस basically the code which you have provided, its time complexity is very bad. ठीक है जी. एक और मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो यार, जावा में और C++ में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. इवन द प्लस पॉइंट विद जावा इज दैट इट इज़ क्वाइट फास्टर देन द प्लस पॉइंट विद C++ इज इट इज़ क्वाइट फास्टर देन जावा. अगर मेरे को ये सेम कोड जावा में लिखना होता ना, तो आपको क्या लगता है मेरे को कितने चेंजेस करने पड़ते हैं. कुछ भी नहीं करना पड़ता. अगर मैं सेम कोड जावा में रन करूँ ना, सेम टू सेम कोड जावा में भी रन हो जाता. इफ यू डोंट बिलीव आई विल शो यू टू यू. मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम टू सेम डिक्टो कोड यहाँ से उठा रहा हूँ. आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड एंड लेट मी चेंज द कंपाइलर टू जावा. ठीक है, लेट मी चेंज द कंपाइलर टू जावा. तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस कंपाइलर ओपन. दिस विल बी द टेम्पलेट ऑफ इट एंड आई विल बी जस्ट पेस्टिंग द सेम कोड दैट वी हैव रिटन इन C++. सिर्फ आपको थोड़े से एक दो चेंजेस करने होंगे. यहाँ पे साइज की जगह लेंथ लिख देना और बूलियन को हम यहाँ पर बूल कहते हैं, वो बूलियन कहते हैं. ठीक है. एंड इफ आई ट्राई टू रन द कोड, आई थिंक इट शुड रन फाइन. एरर आ रहा है, वेरिएबल मिसिंग नाउ माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड. हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है कि हम ऐसे खुले नहीं छोड़ सकते चीज़ें. तो इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ. लेट्स सपोज आई इनिशियलाइज इट विद -1. एक कुछ नहीं, उसको इनिशियलाइज किया है जो हम C++ में भी बेसिकली करते हैं. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, और एक्सेप्ट हो गया. तो सेम टू सेम कोड मैं जो C++ में लिखा था वो जावा में कॉपी पेस्ट कर दिया और एक्सेप्ट हो गया. ठीक है ना. एंड दिस इज व्हाट इट इज वेटिंग, बेसिकली शोइंग अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस. रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स आर सिमिलर. ठीक है, सरप्राइजिंग ना. तो ये कुछ चीज़ है. लेट्स गेट बैक टू C++ ओनली. जावा में आपको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है. तो आपने देखा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n स्क्वायर, जो कि काफ़ी बुरी है. तो let us also analyze what sort of inputs we were given over here. हमको बेसिकली यहाँ पर 10⁻⁴ inputs given थे, if you are able to see. ठीक है ना. In the worst case we were given 10⁻⁴ inputs.
तो यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी n², मतलब आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने बनते हैं यहाँ पर, 10⁻⁴ raised to the power 2 कितने बन गए, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने बन 10 to the power गए, 8. और बिग ऑफ n² के लिए आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गए 10⁻⁸, राइट। इसके लिए टाइम फाइंड आउट करो पर कितना टाइम लगेगा, 0.5. 0.5। कैसे किया, जस्ट वी डिड 10⁸ अपॉन 1 सेकंड का हमको पता है 2 × 10⁸ होता है, कैंसिल कैंसिल, इट इज ग्रेट 0.5, राइट। तो हमको आधे सेकंड लगेगा इस कोड को रन करने के लिए, राइट, ठीक है। तो ये तो यार एक अच्छा अप्रोच नहीं है, मतलब हमको इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इस कोड को सॉल्व करना रहेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, तब जाकर वो कोड रन होगा। मतलब अभी यहाँ पर रन हो रहा है, बट देयर विल बी केसेस वेयर दिस कोड विल नॉट वर्क, ठीक है ना। अभी इन्होंने तो हमको बेसिकली 10⁻⁴ दिया था, इसलिए ये कोड रन हो गया। अगर यहाँ पर इन्होंने 10⁻⁶ रहता तो क्या कोड रन होता। अब इमेजिन करो, ये आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n² है, तो ये कितना हो जाता 10⁻⁶ अपॉन 2, मतलब 10⁻12। इसके लिए कितना टाइम लगता आपको, 10⁻12 अपॉन 2 इंटू 10⁸, जो कि कितना हो जाता 5 इंटू 10⁻3, राइट, जो कि आपका होता 5000 सेकेंड्स, राइट, इज इट राइट, Yes. Yes. जो कि हो जाता 1 पॉइंट समथिंग आवर्स, 4 4 5 समथिंग आवर्स, 1 घंटा कुछ तो पे मिनट्स होते हैं वो, राइट, क्योंकि 3600 मतलब 1 घंटा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1 घंटे के ऊपर टाइम लगता अगर नंबर ऑफ इनपुट्स वुड हैव बीन 10⁻⁶। इफ यू डोंट बिलीव इट, आई कैन इवन शो दिस टू यू। सो ये सेम प्रॉब्लम, सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको गिग्स और गिग्स पे भी मिलेगा, ठीक है। इसकी भी लिंक अगर आपको चाहे तो मैं डाल देता हूँ। सी, ये सेम प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर एक माइन्यूट चेंज है कि उन्होंने n-1 दिया है, साइज ऑफ द एरे दे हैव गिवन इट एज n-1, रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स आर सेम, ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स आर सेम। उन्होंने n- दिया, उसको आप अभी के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत, बाकी का सारा प्रॉब्लम सेम है। देखो, see this, such that only n element should be distinct in the array in the range 1 to n दिया उन्होंने 0 to 1 दिया था, इन्होंने 1 to n दिया है, and we need to find the missing element। अगर आप सेम टू सेम कोड लिखते हो ना, आपको आपका कोड रन हो जाएगा। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कोड, और कैन वी राइट इट अगेन, ओके विल जस्ट राइट इट अगेन। क्या करना है हमको, और एक चीज, इन्होंने n की वैल्यू ऑलरेडी दी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन माय एरे दे हैव ऑलरेडी गिवन, तो एक और अच्छी चीज हो गई। मैं डायरेक्टली मिसिंग एलिमेंट बनाता हूँ, मिसिंग एलिमेंट और मिसिंग नंबर, और उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ -1 से, ठीक है। उसके बाद लगाना है हमको फॉर लूप, फॉर एंड आई इज इक्वल्स टू, अभी मेरे को कहाँ से लगाना होगा, दे हैव गिवन मी द रेंज फ्रॉम 1 to n, वहां पर रेंज क्या थी, यहाँ पर थी 0 to n रेंज थी, राइट। इफ यू आर एबल टू, द रेंज वाज फ्रॉम 0 to n, तो मेरे को फॉर लूप लगाना होगा एंड आई इज इक्वल्स टू 1, आई शुड बी given an array such that it only contains distinct integer, हाँ, तो 1 से लेके n तक ही रहेंगे, तो राइट, आई एम राइट। तो int i is equals to 1 कर दिया, i should be less than n-1 है ना, तो it should be less than n, right? Am I right guys? No, they are saying the range should be between 0 to n, तो मेरे को n को भी include करना होगा। Is it, are you able to get it? Read the question again। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्या किया, रेंज चेंज किए, वहां पर 0 to n था, यहाँ पर 1 to n किया, तो मैंने क्या किया, i को रन कर दिया 1 से till i will go till n and i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर एक और हमने पहले तो बूलियन बना दिया, बोल फाउंड और नॉट फाउंड, उसको इनिशियली फॉल्स कर दिया, एक और फॉर लूप बना दिया जो कि मेरा फॉर इन लूप है, इन जे इन बेसिकली एरे, जे इन एरे, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इफ अगर जे इक्वल्स टू आई हो जाता है तो इस वाले केस में क्या करता ना, फाउंड को ट्रू कर देना भाई, और ब्रेक कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं,
इस फॉर लूप के बाहर क्या करूँगा, एक और इफ लगाऊंगा, इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है नंबर तो उस केस में क्या करो भाई, हमारे जो हमने मिसिंग नम क्रिएट किया उसके अंदर डाल दो आई को, ठीक है। एंड एट द एंड रिटर्न सम नहीं करना मेरे को, मिसिंग नंबर करना है। ठीक है जी, बस इतना सा कोड है हमारा। एक बार रन करके देखते हैं, अगर होता है फिर एरर देता है। कंपाइल एंड रन। कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्या? यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट देना है, जैसे मेरे को मिसिंग एलिमेंट मिल जाता है मेरे को ब्रेक देना है। एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल द कोड अगेन। आई थिंक इट शुड रन फाइन। हाँ, तो हमको नंबर ऑफ इन्होंने इनपुट्स दिया है कि एन की वैल्यू 5 दी थी और एरे में दिया था 1 2 3 5। तो हमको रिटर्न करना था क्या, आउटपुट वाज एक्सपेक्टिंग 4 एंड वी हैव गिवन देम एज 4। तो हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मतलब कंपाइलेशन में तो ये कोड चल गया कि हाँ भाई आपने राइट आउटपुट प्रेडिक्ट किया है, तो योर कोड हैज कंपाइल्ड प्रॉपरली। बट अभी आप ये देखो, जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ ना, एज सुन एज आई सबमिटेड, सी व्हाट हैपेंस। सी यू आर गेटिंग अ रन टाइम एरर। और इसको आप पढ़ो, क्या कह रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड, दैट इज टीएलई एरर। योर प्रोग्राम टुक मोर देन expected time limit, that was the time limit expected was for 1.8 second, but हमारे कोड ने उससे ज़्यादा टाइम लिया है। तो दे आर गिविंग द हैंड कि प्लीज ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट इट अगेन। ऐसा क्यों हुआ है? बेसिकली हमको जो हमारे इस वाले प्रॉब्लम में था ना, वहाँ पर हमको इनपुट्स दिए हुए थे 10⁻⁴, तो ये कोड चल गया था। बट यहाँ पर क्या हो रहा, बेसिकली आपको इनपुट्स देखो कितने दिए ना, दे हैव गिवन द इनपुट एज 10⁻⁶। आर यू गाइस एबल टू से इट? The inputs they have given is 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ के लिए आप ही मेरे को बताओ, आपके इस वाले कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ n स्क्वायर, राइट। अभी बिग ऑफ n स्क्वायर के लिए अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसके लिए टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने लगेंगे आपको? 10⁻12। और उसके लिए टाइम कितना लगेगा? नियरली 1 आवर, राइट। मोर देन 1 आवर, नॉट नियरली, मोर देन 1 आवर आपको लगेगा। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द एरर कि दिस कुडंट बी सॉल्व इन द स्पेसिफिक टाइम। तो ये आपको एरर आता है, ठीक है ना, दैट इज टाइम लिमिट एक्सीडेड। और यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, किसके टाइम लिमिट किसके यूज होते हैं, आपने जो पढ़ा है अभी तक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, वो क्या फिट हो रहा है कि इतने इनपुट्स के इसमें, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली आप अगर ऑन पेपर इसको, अगर ऑफ पेपर तो आपने सॉल्व कर दिया कि आपको एरर वगैरह आ गया, पर ऑन कोड आपने देख लिया कि आपको एरर, बट जब आप इसको ऑन पेपर करते हो ना, आपको सिर्फ गिवन रहते हैं, कंस्ट्रेंट गिवन रहते हैं, इफ यू डायरेक्टली गिव दिस कोड यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दैट, बिकॉज दैट इज बेसिकली एक्सीडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इस टाइम पर आपने जो अभी तक पढ़ा है वो काम में आता है कि क्यों ये बेसिकली क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हो कि हाँ भाई इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग द एरर, इवन दो योर कोड इज राइट बट स्टिल इट इज शोइंग द एरर। तो यही बेसिकली डिफरेंस रहता है जब आप कोई कोड VS कोड में सॉल्व करते हो, यहाँ पर सॉल्व करते हो। यही सारे फायदे हैं किसके, DSA के। तो DSA में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते, हमारा पहला अप्रोच ये नहीं रहता, हाँ जी, मतलब रहता था कि हमको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ता सोल्यूशन, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हमको ऐसे ही सोल्यूशन हम बना पाएंगे हमारे दिमाग से, ठीक है। बट DSA is not about just providing a solution to a problem. DSA is all about optimizing the solution. ठीक है, तो that is what the gist of DSA is. That is what I was trying to give you today कि हम अगर इससे आगे DSA पढ़ेंगे तो हमारा more and more focus रहेगा towards the optimized solution, ठीक है ना, towards giving an optimized and a time efficient and a space efficient solution, ठीक है जी। अभी हमारा next question आता है कि how to optimize this code, ठीक है ना। अभी बता तो दिया, इतना तो लेक्चर दे दिया, इसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से करें। अब मेरा दिमाग इससे आगे नहीं चल रहा है, तो अब आप ही बताओ मेरे को कि इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। सौरव ने लिखा है चैट में, मस्त लिखा है। कैन वी टेक
sum of n natural numbers and sum of array elements, and sum. Yes, that is what the optimized solution is basically. This is also the optimized solution, and there are two more. ठीक है? So Saurav has already provided the solution to it. Please copy that or just take a screenshot of it. I will be able to do that solution in just less than 2 minutes, but I want you to do it. ठीक है ना? So उसने explain किया words में, you have to code it. You have to basically code it and try to check it on this. I will post this link in the group also. इसको आप खुद से एक बार try करो. Will you be able to do it, or should I just do it now only? Will you guys do it? उसको सिर्फ optimize करना है code को. That's it. Saurav have already provided that thing also. You just have to code it. कर लोगे इतना? अरे हाँ या ना? हो जाएगा. Yes, rest of you. अगर कोई दिक्कत आती है तो ट्राई करते हैं. हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज रीच आउट टू. किसने कोड लिखा है यहाँ पर? प्रणव है क्या? नहीं, सौरव है. सौरव तो रीच आउट करो सौरव को. सौरव विल एक्सप्लेन इट. ओके सौरव, ठीक है, चलेगा. Thank you so much guys. That was it for today's session. I know it took a lot of time to just solve a single question, but I was trying to explain you a lot many things. So that's it. We'll see you in tomorrow's class. So yeah, thank you so much. You all can leave the class. Thank you. Thank you.